would be strictly related to the plane polarization or linear polarization. So, starting with today's topic. Okay. So, starting with today's topic, that is polarization by refraction. Yesterday we studied polarization by reflection, and today we'll study polarization by refraction. Now, to understand the polarization by reflection, we must go back to polarization by reflection because they are both interconnected. So this is a diagram we studied yesterday, that if an unpolarized beam of light is incident on a glass surface, in this particular example, so in this particular example, we took glass surface to for reflection or to create polarization. So if an unpolarized beam AB is incident on the glass surface, then obviously there will be refraction. However, there is also a little amount of reflected beam of light, and if the angle of incident with the normal, angle of incident is always with the normal. If the angle of incident with the normal is theta b, or in other words, if the angle of incident with the normal is equal to Brewster angle, the angle at which the reflected beam is completely plane polarized, right? So the angle at which which is also known as the Brewster's angle or theta b, is the angle at which the incident beam is reflected. However, it has only one component of light. Therefore, it is called the linearly polarized or plane polarized light. You have already said कि सानू कोई question नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है? So by using this, uh, if we see it with this partially polarized, this would be refracted beam. I don't know, book misprinting है, ठीक है? This would be refracted beam. Okay. Anyways, so this is the unpolarized light, and this is the refracted beam. Okay. One is sorry. नाउ इस रिफ्लेक्टेड बीम में क्या होगा कि आप देख रहे हो कि इसमें जो वो डॉट वाला कंपोनेंट है वो काफी कम है, ठीक है? डॉट वाला कंपोनेंट 1, 2 और 3 ही है, ठीक है? इसका मतलब जब मेरी रिफ्लेक्शन होती है तो ये वाली जो लाइट प्रोड्यूस होती है, रिफ्लेक्टेड बीम BD, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट प्लेन पोलराइज्ड बिकॉज इट इज पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है? इसका मतलब इसमें से कौन सा कंपोनेंट कम हो रहा है? वो रेड वाला, ठीक है? अब अगर सपोज मैं यहाँ पे ग्लास की एक और प्लेट लगा दूं, ठीक है, ग्लास की एक और प्लेट लगा दूं, तो दोबारा क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी होगी और रिफ्लेक्शन भी होगी। दोबारा रिफ्लेक्शन में क्या होगा? आपके जो डॉट वाले कंपोनेंट दोबारा रिफ्लेक्शन में चले जाएंगे और जो पीछे है वो क्या रह जाएगा? एरो वाले कंपोनेंट। यानी कि विद इंक्लूजन ऑफ मोर ग्लास प्लेट्स, हम जो है पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहेंगे, ठीक है? और जो रिफ्रेक्टेड लाइट है उसमें आपका जो डॉट वाला कंपोनेंट है, जिसको हमने एस कंपोनेंट बोला था, एज यू कैन सी, ठीक है, तो एस कंपोनेंट है वो डिक्रीज करता रहेगा। आई रिपीट, विद द इंक्लूजन ऑफ एवरी ग्लास प्लेट, अगर मैं यहाँ पे एक और ग्लास प्लेट इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, सो विद द इंक्लूजन ऑफ एवरी ग्लास प्लेट क्या होता जाएगा? आपका जो एस कंपोनेंट है विच इज द डॉट कंपोनेंट, एस कंपोनेंट है वो रिफ्लेक्टेड बीम में निकलता रहेगा और ओनली आपके पास क्या बचता जाएगा धीरे धीरे? द एरो कंपोनेंट विच वी कॉल्ड इट एज पी कंपोनेंट, ठीक है? तो ओनली पी कंपोनेंट बचता जाएगा, ठीक है? इसका मतलब नंबर ऑफ ग्लास प्लेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज्ड बीम विद ओनली पी कंपोनेंट, ठीक है? How many number of glass plates are required? That varies, ठीक है?
मटेरियल ग्लास ही ले रहे हैं या मटेरियल कोई और भी ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. हाउएवर, so this thing we are sure about that in this case if we are using glass then a number of glass plates would be required to create the plane polarized. ठीक है, so this is the known as the polarized light produced by refraction. ठीक है, हम इस थ्योरी को स्टडी करेंगे then you'll get it more. When unpolarized light is incident at Brewster angle, obviously the angle should be Brewster. अगर आपका एंगल Brewster नहीं है तो आपका जो आपकी रिफ्लेक्टेड बीम है वो आपकी फुली पोलराइज्ड नहीं होगी, वो थोड़ी बहुत पोलराइज होगी और कभी भी आप रिफ्लेक्टेड बीम में फुली पोलराइज्ड बीम प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ ग्लास प्लेट्स यू आर यूजिंग. ठीक है, सो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई से if this topic comes in exam तो आपको ये इन बातों का ख्याल रखना है. ठीक है, there would be marks related to these things कि आप जो भी लिखो तो आपको इस बात को मेंशन करना पड़ेगा कि अनपोलराइज्ड लाइट को किस एंगल पे ही इंसिडेंट करना है, ब्रूस्टर एंगल पे ही इंसिडेंट करना है. अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका वो इंफॉर्मेशन जो है वो हाफ है, अधूरी है और यू कैन से कि रॉन्ग है. ठीक है, so when unpolarized light is incident and the Brewster angle of smooth glass surface, the reflected light is totally polarized. This we know from the last topic. While the refracted light is partially polarized. Also we know if natural light is transmitted through a single plate, the transmitted beam is only partially polarized. दोबारा उसी लाइन को लिख दिया. If a stack of glass plates, अब एक ग्लास प्लेट नहीं यूज की, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, there are 7 glass plates in this diagram he is showing. If a stack of glass plates is used instead of a single plate, reflection from successive surfaces, हर surface पे reflection होती जाएगी और आपका S component निकलता जाएगा. ठीक है, so filtering of the S component in the transmitter leading to filtering of the S component in the transmitter. अल्टीमेटली क्या होता जाएगा, जब नंबर ऑफ ग्लास प्लेट इंक्रीज करते जाओगे तो जो ट्रांसमिटेड बीम है उसमें सिर्फ कौन सी लाइट रह जाएगी, ओनली द P component light with only the P component which would be the completely polarized light. ठीक है, इस केस में कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स की नीड है हमें, इट इज फाउंड दैट अ स्टैक ऑफ अबाउट 15 ग्लास प्लेट्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस. इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमें कितना चाहिए होगी ग्लास प्लेट्स, 15 ग्लास प्लेट्स चाहिए. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप 15 से ज्यादा ग्लास प्लेट्स यूज करोगे उससे क्या होगा कि जो आपकी पोलराइज्ड लाइट की वो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी, लेकिन उसकी जो मतलब अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए. if you can compromise little bit on the polarization then आपको इंटेंसिटी अच्छी मिल जाएगी with 15 glass plates. The glass plates are supported in a tube of a suitable size. ठीक है, अब ग्लास प्लेट्स को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रखना तो था, इसलिए इसको in a tube of suitable size and inclined at an angle of about 33 degree to the axis of the tube. ठीक है, इनको कितने डिग्री रखा हुआ है. ठीक है, ये वाला एंगल नहीं देखना, ये तो आपका ब्रूस्टर एंगल है जो नॉर्मल के साथ बना. इन प्लेट्स को ये वाला एंगल देख रहे हैं आप. ठीक है, दिस इज 33 डिग्री टू द एक्सिस. अब such an arrangement is called pile of plate. Unpolarized light enter the tube. यहाँ से unpolarized light आ रही है, बार बार रिफ्लेक्शन से आपका S component निकलता जा रहा है. Only the component which is left is the P component. Therefore, the transmitted B will only contain the P component, which will be equal to the almost polarized light. Non-polarized light enter the tube and is incident on the plates at Brewster angle, and the transmitted light will be totally polarized parallel to the plane of incidence. किसी को इसमें बच्चे क्वेश्चन है तो बताओ. हाँ जी, किसी को क्वेश्चन है? So this topic is not in your syllabus, polarization by scattering, तो I'm skipping this topic. ठीक है, अब है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव अब्सॉर्प्शन. आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन छोटा सा टॉपिक है और इससे जो आगे वाले टॉपिक है उनको समझने में इजी रहेगा. ठीक है, तो पोलराइजेशन
पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। अब ये अलग तरीका है, ठीक है। अ नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, अब बात कर रहे हैं हम लोग मटेरियल्स की, ठीक है। अब पहले तो हमने टेक्निक्स की बात की थी, स्कैटरिंग से, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। अ नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल्स absorb more light in one incident plane than another। तो कुछ मटेरियल्स की इनहेरिट प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे एक डायरेक्शन में लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे। सपोज ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज वो एस कंपोनेंट को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा और पी वाले को कम, या उल्टा भी हो सकता है कि पी वाले को ज्यादा करे और एस वाले को कम, ठीक है जी। So a number of crystalline materials absorb more light in one plane than other, so that light progressing through the material। तो अगर दो कंपोनेंट हैं आपके, अगर आपके लाइट के दो कंपोनेंट्स हैं, तो जैसे ही आपके उस जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसमें लाइट एंटर करेगी, दोनों कंपोनेंट डिफरेंशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट में से एक को तो मटेरियल क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, दूसरे वाला मटेरियल बाहर निकल, दूसरे वाली सारी लाइट जो है वो बाहर निकल जाएगी। एंड ऑब्वियसली दैट लाइट विल ओनली कंटेन सिंगल कंपोनेंट एंड दैट लाइट वुड बी कॉल्ड द प्लेन पोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो so that light progressing through the material become more and more polarized as they proceed, ठीक है। तो जैसे जैसे किसी को क्वेश्चन है कोई? सर दोबारा रिपीट करना ये वाली लाइन जो आपने दो कंपोनेंट बोले। ओके, कौन सी वाली बच्चे? तो आपने दो कंपोनेंट नहीं बोले, लाइट आएगी तो उसके दो कंपोनेंट्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, लेट मी जस्ट रीड इट देन यू विल अंडरस्टैंड। आपका नाम क्या है? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बच्चे, आपका नाम क्या है? रंजोत। रंजोत, लेट मी कंप्लीट इट, देन इफ द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, आप मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। so that light progressing through the material become more and more polarized। जैसे जैसे आपके उस क्रिस्टलाइन मटेरियल में से जो लाइट है वो पास करती जाएगी, वैसे वैसे एक कंपोनेंट जो है वो अब्सॉर्ब होता जाएगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो आगे बढ़ता जाएगा। इट मींस द लाइट विल बी मोर एंड मोर पोलराइज्ड जैसे जैसे मटेरियल में से पास करती जाएगी। तो ऑब्वियसली जैसे उस पाइल वाले जैसे उस रिफ्लेक्शन वाले केस में हमें स्पेसिफिक थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट चाहिए थी, वैसे ही इस केस में वी वुड बी नीडिंग अ स्पेसिफिक थिकनेस ऑफ दैट क्रिस्टलाइन मटेरियल, सो दैट जो एक कंपोनेंट है वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाए। अगर आप जो उस पर्टिकुलर मटेरियल की बहुत थिन फिल्म यूज कर रहे हो या उसकी थिकनेस काफी कम है, इन दैट केस वो आपकी एक कंपोनेंट जो है वो पूरा अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। जो तो रहा है अब्सॉर्ब, लेकिन किसी एक्सटेंट तक होएगा, ठीक है, तो पूरा अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। एंड इन दैट केस ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आपका एक दूसरा कंपोनेंट है वो तो आएगा ही आएगा बाहर का, वो तो ट्रांसमिट होएगा ही होएगा, लेकिन जो अब्सॉर्ब हो रहा था उसकी भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आएगी, तो आपको जो लाइट मिलेगी दैट वुड बी पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं दिस डिफरेंस इन अब्सॉर्प्शन फॉर लाइट रेज। अब तक हमने क्या पढ़ा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि एक कंपोनेंट को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं और दूसरे को नहीं करते, ठीक है। तो बिकॉज उनमें डिफरेंस इन अब्सॉर्प्शन है, दिस डिफरेंस इन अब्सॉर्प्शन फॉर द लाइट रे इज नोन एज सिलेक्टिव अब्सॉर्प्शन। यानी कि जो आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल है दे आर सिलेक्टिव टुवर्ड्स वन मटेरियल, सिलेक्टिव टुवर्ड्स वन टाइप ऑफ लाइट इन वन प्लेन, ठीक है जी। तो वो एक तरह की लाइट के लिए वो सिलेक्टिव है और दूसरे के लिए वो कह रहे हैं कि नहीं आप जाओ, ठीक है। So bioscientists have discovered this phenomena in 1815 when natural light passes through a crystal such as example दी हुई है tourmaline, it is split into two components। जो अभी क्वेश्चन में आया था उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। When natural light passes through a crystal such as tourmaline, it is split into two components, जैसे इस डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है। लाइट आई, लाइट के दो कंपोनेंट, अब एक तो ये डायरेक्शन वाला, ठीक है, और एक ये ऊपर नीचे वाला,
डायग्राम जो है वो 3D में शो की हुई है, एक ऊपर नीचे वाला और एक ये लेफ्ट राइट वाला, ठीक है। दो कंपोनेंट चल रहे हैं। जो आपका मटेरियल है वो किसको ऑब्जॉर्व करता है, वो ये जो लेफ्ट राइट वाला है इसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप जा रहे हो लेफ्ट राइट वाले की इंटेंसिटी कम हो रही है, पहले वाला एरो ज्यादा लंबा था, उससे कम इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। इंटेंसिटी जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी भी थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन बहुत थोड़ी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसने स्लाइटली एटेन्युएटेड वेव लिखा हुआ है। जो दूसरा कंपोनेंट जो कि मटेरियल अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, बिकॉज वो किसी ना किसी जगह से पास होके आ रही है लाइट, इसलिए उसकी इंटेंसिटी तो थोड़ी बहुत कम होगी, इसलिए स्लाइटली अटेन्युएटेड। अटेन्युएटेड का मतलब डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, ठीक है। स्लाइटली अटेन्युएटेड वेव निकलती है उसमें से, ठीक है। तो दोबारा पढ़ते हैं। When natural light passes through a crystal such as tourmaline, it is split into two components which are polarized in mutually perpendicular plane, ठीक है। तो उसने लाइट के दोनों कंपोनेंट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एक ये वाला कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है। वो एक को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा। The crystal absorb light that is polarized in the direction parallel to particular plane in the crystal, ठीक है। तो एक खास जो प्लेन के पैरेलल होगा उस लाइट को वो अब्सॉर्ब कर लेगा, बट फ्रीली ट्रांसमिट द लाइट कंपोनेंट पोलराइज्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो उसके जो परपेंडिकुलर वाला है उसको वो फ्रीली ट्रांसमिट कर देगा। इफ द क्रिस्टल इज ऑफ प्रॉपर थिकनेस, जैसे मैंने बोला था कि क्रिस्टल की थिकनेस जो है that needs to be little proper, so that जो आपका जो कंपोनेंट अब्सॉर्ब हो रहा है वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाए। If the crystal is of proper thickness, one of the component is totally absorbed and other component emerging from the crystal is linearly polarized. Selective absorption is illustrated. So this is the diagram, ठीक है। पहले नॉर्मल लाइट आ रही थी, इसने दोनों कंपोनेंट्स दिखा दिए, ठीक है। ये जो लेंथ ऑफ द एरो टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती गई, अब्सॉर्ब होता गया जब तक ये बाहर निकला। ये बॉक्स जो है ये आपका मटेरियल है, ठीक है, क्रिस्टल मटेरियल है। तो जैसे ही इस मटेरियल में से बाहर निकला तो वो एक कंपोनेंट अब्सॉर्ब हो गया था और दूसरा कंपोनेंट ही रह गया ऐसे, ठीक है। रंजोतिया नाउ क्या समझ आ गया है? दोबारा बोलो। हाँ जी सर, हो गया क्लियर। ओके जी। एनीबॉडी, किसी और को कुछ पूछना है या कुछ क्वेरी है? नो? ओके। इसी ये आपके सिलेबस में तो नहीं था ये टॉपिक, लेकिन इसी को इससे ही अगला टॉपिक आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट केस में बोला कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को अब्सॉर्ब कर लेंगे दूसरे कंपोनेंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही कुछ मटेरियल और होते हैं जो क्या करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट आई, उसमें से दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करके और दोनों कंपोनेंट को ट्रांसमिट दोनों कंपोनेंट में कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग दो लाइट रेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग इज अनपोलराइज्ड लाइट को दो कंपोनेंट्स में, जितने भी इसके कंपोनेंट है, अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा में, ठीक है, पर इन नॉर्मल केस, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट के उसके दोनों कंपोनेंट को अलग अलग डायरेक्शन में करके टू लाइट रेज प्रोड्यूस कर दी। एंड उससे क्या होगा कि आपके पास ये दो पोलराइज्ड लाइट है, दिस इज पोलराइज्ड इन इट्स ओन सेंस, ठीक है, और ये अपनी सेंस में पोलराइज्ड है, ठीक है। दोनों प्लेन पोलराइज्ड कम लाइट कंपोनेंट्स हैं। आपने जिसको भी ब्लॉक करना है कर दो और दूसरे को यूज कर लो, ठीक है। तो दिस इज मोर एडवांस्ड टेक्निक, ठीक है। इसका अगर एरोलॉजी लेनी हो, जैसे हम प्रिज्म के केस में पढ़ते हैं, अगर मैं एक लाइट आ रही है उसके आगे प्रिज्म रख देता हूं तो वो क्या करती है कि उसकी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग कंपोनेंट में उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। इसमें भी ये क्या कर रहा है, लाइट को उसकी किस प्लेन में वाइब्रेशंस आ रही हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके अलग अलग कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये रिफ्लेक्शन हो रही है ना, ठीक है, डिस्पर्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। सो इसलिए इसको, क्योंकि दो लाइट रेज आ रही है इसलिए इसको डबल रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। एनीबॉडी आस्क, क्योंकि डबल रिफ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, तो बिकॉज ये एक लाइट के उसको दोनों कंपोनेंट को अलग अलग डायरेक्शन में
पास करवा रहा है, रिफ्रैक्ट करवा रहा है, ठीक है जी, इस दोनों कंपोनेंट्स को। एक कंपोनेंट को उसने बोला है ई, ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये डॉट वाले को बोलते हैं ओ। याद रख लो, आगे बहुत बार हम यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज द ओ रे ऑर्डिनरी एंड दिस इज ई रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। When a beam of unpolarized light is incident on the surface of an isotropic crystal, अगर आप ये वर्ड स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, स्टिल मैं मीनिंग बता देता हूँ। आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? अगर आपने +2 की केमिस्ट्री याद हो तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में भी उसमें जाओ ना तो आपको मटेरियल की सेम प्रॉपर्टीज मिलती हैं, या मटेरियल में एटम की अलाइनमेंट सेम रहती है। लेकिन अगर उसमें ऐसा ना हो तो उसको अनआइसोट्रॉपिक, ठीक है जी। तो अनआइसोट्रॉपिक का कोई यहाँ पे ज्यादा लिंक नहीं है, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। When a beam of unpolarized light is incident on the surface of anisotropic crystals such as calcite or quartz, ठीक है, it is found that it will separate in two rays, ठीक है जी। तो दो रेज में इसने इसको सेपरेट कर दिया, that travel in different direction, ठीक है जी। This phenomena is called birefringence or double refraction. The two rays are known as ordinary ray and extraordinary, which are linearly polarized in mutually perpendicular direction, ठीक है जी। दोनों आपस में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक ही लेफ्ट राइट में है और एक अप डाउन है, ठीक है जी। A single linearly polarized ray is obtained in practice through elimination of one of the two polarized rays. एक्सपेरिमेंटली हम क्या करेंगे, एक को ब्लॉक कर देंगे और दूसरी को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस तरह की चीजें हम काफी इस चैप्टर में कवर करेंगे। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ओके, नो। ओके, अब आगे देखो। तो अब बच्चे हम पढ़ेंगे पोलराइज्ड शीट क्या होती है, ठीक है। कल भी कुछ किसी ने पूछा था कि जो कार वगैरह के अंदर जो आपकी शीट होती है वो लगी होती है, ठीक है, उसमें हमने उसमें हम वो तो करते नहीं है कि ब्रूस्टर एंगल तो बना नहीं सकते, ठीक है। तो जो हम अलग अलग अपनी ग्लासेस देख लो आप, जो शेड्स बोल देते हैं जिसको, ठीक है, शेड्स देख लो, या ग्लास के ऊपर जो लगती है ब्राउन सी शीट जो लाइट की इंटेंसिटी वगैरह कम करने के लिए आती है, उनको बोलते हैं पोलराइज्ड शीट्स, ठीक है जी। ये जस्ट समझने के लिए टॉपिक है, ठीक है, रीड ओनली लिखा हुआ है, जस्ट टेक इट एज इट इज, ठीक है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, ठीक है। तो ये लैंड करके साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने पोलराइज्ड शीट्स का बारे में बताया, which utilize the phenomena of selective absorption। और फिनोमिना कौन सा यूज किया, सॉरी, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, जो आज मैंने आपको करवाया कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि एक कंपोनेंट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और दूसरे कंपोनेंट को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है जी। द शीट्स, अब ऐसी शीट्स बनाई कैसे जा सकती हैं, ठीक है। द शीट्स आर फैब्रिकेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले एक क्लियर प्लास्टिक शीट ऑफ लेइंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ पीवीए, पॉलीविनाइल अल्कोहल, एक टाइप का पॉलीमर है जिसको पीवीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पीवीए पॉलीमर की प्लास्टिक की शीट ली है, उसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, प्लास्टिक है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, एंड देन स्ट्रेच्ड इन अ गिवन डायरेक्शन टू मेनी टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर उसकी लेंथ 1 मीटर है तो उसको मे बी 10 मीटर तक या 5 मीटर तक उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग क्यों की जाती है, व्हाई टू डू स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, सारे जो पीवीए के मॉलिक्यूल्स हैं उसी स्ट्रेचिंग की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग प्रोसेस ऑफ पीवीए मॉलिक्यूल्स, during the stretching processes the PVA molecules become aligned in the direction of stretching। तो सारे जो molecules हैं एक तरफ क्या हो गए, अलाइन हो गए। नाउ यू आर गेटिंग कि मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ इस चीज को। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके मॉलिक्यूल्स अलाइन हो रहे हैं, यानी कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही फॉलो करेंगे, दूसरी डायरेक्शन को वो क्या कर देंगे, अब्सॉर्ब करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
The sheet is then laminated to a rigid sheet of plastic. अब obvious सी बात है कि अगर वो जो PVA की शीट है वो तो बहुत सॉफ्ट होगी, ठीक है, उसको लेमिनेट कर दिया. लेमिनेट मतलब ऊपर और नीचे प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक की शीट्स लगा दी, ठीक है, so that it becomes stable, ठीक है. The sheet is then laminated to a sheet of plastic to stabilize its size. It is then exposed to iodine vapor, ठीक है, उसके ऊपर अब आयोडीन वेपर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है. आयोडीन से क्या होगा, क्यों लगाए जाते हैं? The iodine atoms attach themselves to strong long chain PVA molecules, ठीक है. आयोडीन के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो PVA molecules पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, and consequently form long parallel conducting chains, और वैसी की conducting chains रहेंगी. कंडक्टिंग का क्या मतलब है? कंडक्टिंग का मतलब है कि जो आयोडीन एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं विच कैन मूव इजीली अलोंग द अलाइंड चेन, ठीक है जी. तो वो जो चेन्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली मूव कर सकते हैं, पर किस डायरेक्शन में नहीं कर सकते, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से ही एक डायरेक्शन फिक्स कर ली थी स्ट्रेच करके. When natural light is incident on the sheet, the electromagnetic vibrations that are in up direction parallel to the alignment of iodine atoms are strongly absorbed, ठीक है. तो अब वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो उस डायरेक्शन वाली चीज को तो क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है. लेकिन जो उसके परपेंडिकुलर आया उसको वो कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डिसिपेटिव इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इन द चेन, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर लिया. अब वो एनर्जी कहाँ गई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, ठीक है, तो वो एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है. Consequently, only those vibrations in a direction perpendicular to the direction of molecular chain are transmitted. दूसरे को उसने जाने दिया. Thus, the light transmitted through the polarized sheet is polarized. जो उसमें से light निकली वो polarized होगी. A sheet fabricated according to this process is known as H sheet. H sheet बोलते हैं. These sheet polarizers are inexpensive. बहुत cheap है, ठीक है, and can be made in large sizes. Large sizes, the polarized sheets are widely used in sunglasses, camera filters to eliminate the unwanted glare from objects. किसी भी जगह पे लाइट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए यूजुअली इस चीज को यूज किया जाता है. Are extensively used for the production and detection of linearly polarized light, ठीक है. आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, शायद हम आज उसको कवर करें, प्रोडक्शन ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट. अगर मुझे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करना है या प्रोड्यूस हुई है कि नहीं डिटेक्ट करना है, ठीक है जी, तो ऐसे पोलराइजर शीट्स की हेल्प ली जाती है. एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक? बच्चे में 1 मिनट में आया. इसमें तेरे लिए भी है.